on chapter integers, laws, laws of laws of indices. In this topic, we are going to learn that what are the indices and to learn the rule of indices, which are very useful throughout the mathematics. What are indices? Indices provide a way of writing numbers in a more compact and convenient form. Indices is a plural form of index, and index is often referred as power or exponent. For example, 7 raised to 5. We read this number as 7 raised to 5. Here the number 7 is base and 5 is index, power or exponent. So let's learn few more examples. 5 into 5 into 5. It is mentioned as 3 times. So we can also write it as 5 raised to the power 3. 2 into 2 into 2. It is 2 is multiplied itself by 4 times. So by writing such a long way, we can write in short form it by to the power of 4. Here in third example, 7 is mentioned 5 number of times. So we write it as 7 raised to power of the 5. 7 raised to 5 and 2 raised to 4 are the number X form. Combining numbers 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2, we can write it as 5 raised to 3, as 5 is 3 times and 2 is 4 times. Here it is given in such a long multiplication form, so we can write easily by 5 raised to 3 into 2 raised to 4. We cannot write this in any more simply. Can only combine base numbers if they are same. Rule 1 or law 1 of laws of indices. First, multiplication. A raised to into a raised to n is equal to a raised to m plus n. It means that there are two numbers, a raised to m and a raised to n. So we can, and condition is that it should be multiplication and the bases should be equal. Number bases should be equal. Then only then we can add them. For example, 2 raised to 4 is equal to 2 raised to 10. As 2 into 2 bases are same, so we should add them. 2 into 2 raised to 6 plus 4 gives 2 raised to 10. Second, 2 raised to 4 into 2 raised to 2 raised to 6, as 2 raised to 4, 2 and 2 are same base numbers, so we can add them and we got answer 2 raised to 6. 3 raised to 5 into 3 raised to 7 is equal to 3 raised to 7. 3 and 3 are bases same, so we add them and we get as 3 raised to 12. It was the first law of indices. Law 2, division. It means that a raised to m divide a raised to n is equal to a raised to m minus n. In this also condition, it should base number equal then, and this should be in operation division. Then we can subtract the numbers, we get the answer. First, 2 raised to 6 divide 2 raised to 4 is equal to 2 raised to 2, as base number 2 into 2 are same, so we subtract them and we got 2 raised to 2. Second, 2 raised to 5 divide 2 raised to 2 is equal to 2 raised to 3, as 2 divide 2 are same bases, so we subtracted their powers and we got 2 raised to 3. Third, 3 raised to 5 divide 3 raised to 7 is equal to 3 raised to minus 2 power, as here the 3 divide 3 base numbers are same and their powers, first power is smaller than second power, so the answer we get in minus. Brackets. A raised to m bracket n is equal to a raised to m into n. For example, 2 raised to 6 into 2 is whole raised to power 2. Whole raised to power 2 gives as
2 raised to 6 into 2, which is 12, then, or we can also add it by writing 2 raised to 6 into 2 raised to 6 gives 2 raised to 12. 3 raised to 5 power to the whole 3 is equal to 3 raised to 15, as 3 raised to 5 into 3 gives 3 raised to 15. Rule 4, index of 0. How could you get an answer of 3 raised to 0? 3 raised to 5. Divide 3 raised to 5 gives 3 raised to 5 minus 5, which we get 3 raised to power 0. And if there may be any number given like that, 1000 raised to 0, 100 raised to 0, the answer of these powers came always 1, as it is not defined properly and it is infinity. So 3 raised to 0 answer comes 1. Putting the powers together, 2 into 2 raised to 6 into 2 raised to 4 divided by 2 raised to 3 is equal to, here in the division, in numerator, 2 raised to 6 into 2 raised to 4, the bases are same, so base numbers are same, so we added their powers and we got in numerator 2 raised to 10. 6 plus 4 gives 2 raised to 10 to 3 gives 2 raised to 3, and here they are in division in this format, that 2 raised to 10 divide 2 raised to 3 is equal to 2 raised to 7, as we subtracted the powers in condition Okay. of terms that bases are same. Yes, 3 okay, raised to very 5. good. Yes, very nice. Something else is remaining. Next slide. Sir, only, yes sir, only one is remaining. 3 raised to 5 into 3 raised to 7 upon 3 raised to 4 it gives 3 raised to 12 upon 3 raised to 4 is equal to 3 raised to 8. Negative indices. If there is a raised to minus m, to make the number positive, we write it as 1 by a raised to m. For example, 2 raised to minus 3 equals to 1 upon 2 raised to positive 3. Summary, what we have learned. Rule 1, multiplication of indices. A raised to n into a raised to m is equal to a into a raised to n plus m. Rule 2, division of indices. A raised to n divide a raised to m is equal to n minus m. Rule 3, for powers of index number, a raised to 0 is always equal to 1. For powers of index number, a raised to m whole power n is equal to a raised to m into n. For fractional indices, we write a raised to 1 upon n is equal to square root a raised to n. For negative indices, a raised to minus root of a. Okay. nth root of a. And for a sixth rule, for negative indices, a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m. Thank you. Wow, very nice. Everyone switch on the audio and clap for her. Very good. Okay, in the way, I have one question. What is 0 raised to 0? 1. Yes, anybody else? What is the answer? 0 raised to 0. किसी को पता है? अवनीश बोलो. अमित बोलो, अमित. 0. Sir, 0 raised to 0, 1. 0, 0. 0 raised to 0, 0. 0. 0. In the way, very nice presentation. 0. Very Sir, nice 0 raised to 0 presentation is given equal to by 1. Hind. एक minute, पहले सुनो. Very nice presentation given by Hindavi. She has actually
prepared nicely first before giving presentation. She was well prepared. Her modulation of voice was very nice. When you speak, your toning should go up and down. Then it affects the audience. Audience को affect करता है. Another thing she did was her time management was also perfect. She exactly completed the given slides in exactly 5 minutes. So that is a very nice sign. Punctual to your speech. Of course, आपका अगर वीडियो ऑन रहता तो मैं बाकी की चीजें भी बोल सकता था कि आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, मेंटेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. सारे ऑडियंस के इंटरेस्ट उन्होंने रखा कि ये पहला लॉ, ये दूसरा लॉ, ये तीसरा लॉ, सब लोग देखते रहेंगे स्क्रीन के ऊपर. So that is also another. There are 10 to 15 criterias for speaking for a speaker or for a teacher, which they should make sure. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया अच्छे फॉलो किए हैं इंदवी ने. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच इंदवी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. हाँ, तो 0:0 का किसी को पता सर है मैं आंसर? बताऊं क्या? बोलो. 0. सर 1. सर 0. सर 1. 0. अरे सर, 0. सर एक ही 0. 0. एक मिनट. Okay, no problem. I will 0 raised to explain. 0 is equal to 1. Sir, 0. because according to rule, any power is raised to 0 then is equal to 1. Yes, as per the rule, answer should have been 1, but I will tell. Just a minute. अरे लिखो मत अभी स्क्रीन पे, एक मिनट. सर 0. कुछ लोग बोल रहे 0, कुछ लोग बोल रहे 1. अभी मैथ्स क्या बोलता है मैं बताता हूँ. Just a minute. Okay. See, in the laws of indices, when we discuss this particular term, 0 raised to power 0, ये जो रूल हम लिखते हैं ना, a raised to 0 is equal to 1, हमेशा यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं a should be नॉन जीरो. क्योंकि अगर बेस 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस. और ये ऊपर वाला 0 जो है, इसको हम बोलते हैं, we can say it as power or index or exponent. ओके. तो अभी ये नीचे वाला बेस वाला 0 बोल रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है वो कि मेरी वजह से आंसर 0 बनेगा. ये पावर जोर जोर से चिल्ला रहा है, मेरी वजह से आंसर 1 बनेगा. मैथ्स बोल रहा है तुम दोनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नॉट डिफाइंड बोल देता हूं. ठीक है, तो मैथ्स में 0 raised to 0 इज नॉट डिफाइंड. समझ में आया? Yes, sir. जब भी किसी भी चीज के 2 आंसर आते हैं तो मैथ्स हाथ ऊपर कर देता है, बेटा तेरा वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, तू घर चला जा अपने. सो नॉट डिफाइंड, याद रखना, 0 raised to 0 इज नॉट डिफाइंड. ओके, ऑल राइट. मैंने एक क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि जस्ट आई वांटेड टू चेक द नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ यू. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आपने 2 आंसर बताए, लेकिन दो आंसर अलग आ सकते हैं, बट मैथ्स में जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है तो याद रखना है कि उस चीज को नॉट डिफाइंड कहा जाता है. इसीलिए रूल लिखते वक्त हम ब्रैकेट में बेस को नॉन जीरो लिखते हैं. रिमेम्बर दिस. ओके, anybody else? Someone else wants to present? Sir, parents meeting on Sunday is online or offline? Online. Everybody should have parents sitting beside them. हमारा टाइमिंग है मॉर्निंग 10 to 11. सबके पेरेंट्स साथ में बैठे हुए रहने चाहिए. इफ पॉसिबल बोथ पेरेंट्स, फादर मदर.
If father or mother is not available, at least one person should be there compulsory. Okay. Morning 10 to 11, on Sunday there is parents meeting. Okay. Chalo, somebody else want to give lecture today? सर सर फटाफट आता स्लाइड बनाते. सर यू कैन कंटिन्यू. Okay, ठीक है. सर हाँ बोलो. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है. ठीक है. सो थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. बहुत अच्छा लगा. 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट में कम से कम अभी अगले टाइम नेक्स्ट टाइम यू कैन प्रिपेयर 2-3 स्टूडेंट्स कैन गिव, तो फिर पूरा हाफ एन आवर में आपका एक पूरा लेक्चर हो जाएगा. ऑफ कोर्स. हाँ सर, हम बायोलॉजी केस में देते हैं प्रेजेंटेशन लास्ट 20 मिनट्स. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे फिलहाल मैथ्स में हमने अभी कंपटीशन स्टार्ट नहीं किया. अभी मैं कंपटीशन स्टार्ट करने वाला हूँ. और आपका कंपटीशन हम आपके टोटल 4 ग्रुप्स बनाएंगे. 20 स्टूडेंट्स है ना अराउंड, तो 5-5 स्टूडेंट के 4 ग्रुप्स बनाएंगे. और आपको क्या प्रिपेयर करना है लिख लो. स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ क्या प्रिपेयर करके आना है उस कंपटीशन के लिए. एक दिन कंपटीशन डे रहेगा हमारा जस्ट अ मिनट. मैथ्स के एक लेक्चर में. नंबर 1, you have to prepare squares of numbers starting from 1 to 30. 1 square 1, 2 square 4 and so on. You have to prepare cubes of natural numbers from 1 to 15. Number 3, you have to prepare tables from 1 to only up to 25. टेबल्स कहाँ तक याद है सब लोगों के? सर 30 सर 30 सर 40. सर 30 सर इंग्लिश. सर 45. 1 to 30. 30. ओके, 1 to 30. सर इंग्लिश. चौथा याद करके आना है. उस कंपटीशन में इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस रहेंगे. हाँ, चौथा याद करना है शॉर्टकट्स. ग्रुप में से जो ग्रुप जीतेगा उसे क्या मिलेगा? शॉर्टकट्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. बताता हूँ. वेट. इसका मेरा एक स्पेशल लेक्चर है, उसका लेक्चर का लिंक मैं आपको भेज दूंगा. वो लेक्चर सुन के क्लास में आने का. ओके. शॉर्टकट्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ये पढ़ के आना है. एलसीएम मैंने अगर आपको ऐसे फटाफट ऐसे नंबर्स दिए बहुत सारे 4, 12, 36, इनका एलसीएम तुरंत 2 सेकंड में आना चाहिए. 36. 36 as all are divided by एचसीएफ numbers. 4. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ऐसे ही मैंने बहुत सारे शॉर्टकट पढ़ा दिए हैं उस लेक्चर में. वो लेक्चर का लिंक मैं भेज दूंगा, वो सुन लेना सब लोग. ओके. स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, शॉर्टकट्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. एंड फिफ्थ वन इज you should also know addition, subtraction, multiplication, division of decimals and fractions. ये 5 चीजें प्रिपेयर करके आना है. ओके. सर ग्रुप कब बनाने वाले हैं आप? सर 5th एक दे फिर से बताओ ना. हाँ, सर 5th बताओ ना. 5th है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस. सेकंड चैप्टर हमारा 7th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन था ना रे? हाँ सर, डेसिमल फ्रैक्शन ही थे. ओके. सर आप टीम्स कब बनाएंगे? I will make the teams on coming Monday, पेरेंट्स मीटिंग होने के बाद. और हमारा कंपटीशन रहेगा ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे. 8 दिन है आपके पास. 8 दिन में ये सब थरोली प्रिपेयर करो. और जो लोग कंपटीशन जीतेंगे, अभी मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे साइड से वो
प्यार से दिया हुआ गिफ्ट है। तो मैं आप जो भी टीम जीतेगा, ऑल 5 स्टूडेंट्स विल गेट a nice pen from my side, 1 pen. Okay, मैं ज्यादा बड़ा सर गिफ्ट पर नहीं दे कैसे सकता। दोगे? मैं ज्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकता। जो लोग परभनी में हैं उनको मैं मिलने आऊंगा, और जो लोग परभनी के बाहर है, लेटर वेन एवर यू मीट, ऑफलाइन अगर शुरू होता है तब मैं दे दूंगा। ठीक सर है। हमें अगर आपने फोटो भी भेजा पेन का तभी भी हम खुश हो जाएंगे। क्या ऐसे करें, पिछले साल आप पूछ सकते हैं, 8 स्टैंडर्ड के बैच को पूछ सकते हैं। उनको मैं सच में रियली गिफ्ट दिया हूँ। आई यूज टू ऑफलाइन रहता था ना उस वक्त, तो वैसे ही कंपटीशन इसी 5 टॉपिक के ऊपर हमने रखा था, और उसमें से 4 ग्रुप बनाए थे मैंने, और 1 ग्रुप जीता था। तो उन सबको सच में मैंने पेन्स दिए थे, लेकिन स्वीट्स सबको दिए थे। ऑल दोज हु पार्टिसिपेट उनको सबको स्वीट्स एंड पेन्स। अभी स्वीट तभी मिलेंगे जब हमारा पूरा ऑफलाइन शुरू होगा। ऑल राइट, ये तो था कंपटीशन के बारे में। नाउ लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन। वी आर कंटिन्यूइंग डेटा हैंडलिंग चैप्टर। अभी देखो, मैं लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसमें सच में प्रेसिंग डाउट है, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस इट टुडे। हमने अब तक क्वेश्चन 24 तक सर कंप्लीट 1 किया है। मिनट रिमेन। क्वेश्चन 24 तक किया है कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन सीक्वेंस। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 25 तक हमने कंप्लीट किया था। सर अभी आप क्या करो कि जो भी आसान आसान क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करो खुद। यू कैन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि डाउट सॉल्व करते वक्त मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नए नए पढ़ाए हैं। तो जिनको भी डाउट्स थे वो फिर से वो जो डाउट्स वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, और अगर अभी डाउट आता है तो भी पूछो। इतने सारे क्वेश्चंस हम डाउट्स में अभी नहीं ले पाएंगे एवरीथिंग, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हमने देखे कि बहुत सिंपल सिंपल भी थे। ठीक है, बट डोंट वरी, इसमें प्रैक्टिकली 10 स्टैंडर्ड लेवल का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हुआ है हमारा। हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था ना कार्ड्स का एग्जांपल, वो 10 स्टैंडर्ड में है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का। अभी हम वो कवर कर रहे हैं। So that means you are learning little high things also. Of course, that chapter is very easy also. Probability is very easy. चलो, question number 28. Mean of 5 observation is 14. 5 observations है, उनका mean. Mean मतलब average. So mean का formula हमें पता है, sum of all observation upon total number of observations. Okay. अभी हमें दिया हुआ है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, हाउ मच 14। तो मीन का वैल्यू 14 है और 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ से हमें सम का वैल्यू मिलेगा 14 इंटू 5। 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। सो 14 इंटू 5 70। ये आएगा सम ऑफ ऑल दोस 5 ऑब्जर्वेशंस। ओके, अगला लाइन है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली रेड एज 10 फॉर 30। अभी ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है, उन 5 ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे ए बी सी डी ई। ये 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को हमने 10 पढ़ लिया, लेकिन वो एक्चुअली 10 नहीं था, इट वाज एक्चुअली 30। ओके, दिस वाज द राइट वैल्यू, but 10 is a wrong value. Okay. Then find out the correct mean. तो अभी ये जो मीन आया है 14, ये रॉन्ग मीन है, क्योंकि इसमें जो 5 ऑब्जर्वेशन है, आपको पता है कि मीन निकालते वक्त हमें इन 5 का सम लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14 मिलेगा। लेकिन ये जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, वो यहाँ पे हमने लिया था 10, ये हमने 10 लिया, इसीलिए मीन 14 आया, लेकिन ये रॉन्ग मीन है, क्योंकि यहाँ 10 नहीं, एक्चुअली 30 रहना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 30 डाला तो
मीन कितना आएगा ऐसा पूछा गया हमें। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, देखो। 20. हाँ, तो यहाँ पे हमें करेक्ट मीन निकालना है, तो राइट मीन निकालते वक्त चेंज क्या होगा, जो सम है वो 10 के जगह 30 आया ना, तो 20 नंबर बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो ओरिजिनली सम था 70, जो रॉन्ग आंसर दिया। तो अभी राइट आंसर लाने के लिए 10 के जगह 30 रखने के बाद एक ऑब्जर्वेशन 20 से बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय 20। सो इसीलिए सम जो है, सम विल बिकम सम प्लस 20 एक्चुअली। तो जब हम चेंज करेंगे तो सम प्लस 20 आएगा, और यहाँ पे हमें वो एक्चुअल राइट मीन मिलेगा, जो करेक्ट मीन है। तो राइट मीन इज इक्वल टू सम प्लस 20 अपॉन 5। ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। ओके, बस यहाँ सम का वैल्यू 70 डाल दो। 70 आया ना, अभी कैलकुलेट किया हमने। सो 70 प्लस 20 अपॉन 5, that is 90 by 5, that is how much is the answer? 18. 18 is the correct mean, and that is given in option C. ओके, बाकी का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो। इसका फोटो मैं भेज देता हूँ, ओके सर। इसका फोटो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है? बाद में लिख लेना। थैंक यू, बाय, सी यू, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर? बाय। हाँ बोलो। सर